हेलो फ्रेंड्स, स्क्रेच प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। विद वेक्टर ब्लॉक्स हम आज करेंगे ब्लॉक कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमेशन कैसे बनाया जाता है इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन। हाउ कैन वी क्रिएट। सो फर्स्ट सपोज आई एम टेकिंग ओवर हियर स्प्राइट बैकड्रॉप में ले लेता हूँ कोई सा भी, और बैकड्रॉप लेना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं एक बैकड्रॉप ले लेता हूँ ताकि आपका जो है स्क्वायर ब्लॉक ले लेता हूँ। ओके, ताकि वहां पर आपको क्लियर मूवमेंट नजर आए। ठीक है। सो बैक मैं ले लेता हूँ आईजेक रोबोट। आई ट्राई टू आईजेक रोबोट। आई एम पिकिंग अवर हियर एंड डिलीट टॉबी। So okay, now I choose a backdrop. Backdrop I'm taking over here a small like that beach, roadshow, bedroom, and just like clear background. So I just selected fill activity. Okay, now I'm just taking over heart. Okay, so now you can see that I'm taking over light. Either this one is great. I'm taking this one as okay. So now first you choose go to the control, and when click you have to press, and then you choose control block and go to the repeat. So type a repeat number of time 10. Now go to the looks and choose the switch costume 1, 2, and 3 times. So first I am just doing so hijack weaving, change of hijack, and another hijack again weaving will be there. It will be changed. So just let me see. Okay. So now just check it over here. It's not moving. I think rough area is not there. So hijack is not moving. So I just okay. So just I am using a gain control and use to wait. So timer I'm putting over here. So 0.25 to 0.25, and then again I'm taking a weight. Okay, now 0.25. Okay, and again I'm taking 0.25. So you can see that he's moving. Posture is changing, and again I am taking suppose value like that for weight command again. So I'm just 0.25 again. Okay, so now you can see that it's moving again and again. Looping is here. So this is the animations we can create. So now again, if I just use a costume change, so switch to costume. Either I just go to the looks and switch to next costume. Yeah, switch to costume. So first I just see that that one and costume. So I just copy again this copy and paste. So again I am just changing. Okay. So that one. Okay. So now one is control, then select, and now group. Group button we have to click just like that one, and this is group. So I am just putting over here. Okay, hand should be like that here. Okay, now and yes, and okay. So this is the hand, and this hand will be changing shape like that. हम इसकी पूरी शेप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, जिस तरह से हमको करना है उसके हिसाब से. So this is the way we can change and create or convert a bitmap. Okay, so convert a bitmap. It will be like that. Then you choose to color. If you want to change the color, so you just change the color. Okay, now red I am putting over here. Okay, now select the first select to that one.
Okay, and now I'm just selecting over here. Yes, I will select to this is like a portion and choose the color, and this is the red one, and this red one, and then okay, okay now. So this is the one, and then fill the color. Okay, so color will be filled when you use to brush tool. Okay, so that one color will just change the base like that different colors. Okay, so now convert a bitmap again, and this will be converted. So will be reflected over here. और उसके बाद हमने क्या किया, इसको वापस ब्लॉक्स में गए और स्विच टू कॉस्ट्यूम देखते हैं. पॉइंट डायरेक्शन टू मूव, आइदर हम उसको मूव कर सकते हैं. अगर हम एक और बार देखें कि आईजेक जस्ट मूविंग ओवर हियर again and just put it control and weight again. I am taking weight 0.25 and then I was just pressing IJK again, so you can see that it's an animation thing just moving here and like that over here. You can increase size of IJK also. So we are putting 150. Let me just 150, and that you can run execute and that see that it is moving. So that's like animation we can make in a Scratch. And after that, what you should do, either you can change that. Suppose I am just changing point 0.5, point 0.5, and that one I'm changing 0.125. Okay, so okay. So now you can see that again that will be a reflection will be changed like that animation. So इस तरह से हम animation बना सकते हैं इसमें. Okay. So suppose switch costume. So a different type costume we are having and looks like that switch costume and now a next costume. So बहुत सारे backdrop है यहाँ पे आप चला सकते हो. Either we can change color also of that one. So I am just putting a mosaic. Okay, so then you can see that execute this one. So a color will be changed and different animations. So you can see that different animation here. Suppose I am just effect by 25. So I just मैं इसको कर देता हूँ only 5x जो है expect होगा, then execute. तो 5 बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा. नाउ आई एम चेंजिंग अवर, यहाँ पर सपोज मैं 80 कर देता हूँ इफेक्ट. ओके, इट्स टू बिगर. ओके, नंबर ऑफ इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो जितने इफेक्ट मैं बढ़ाना चाहूँ वो उतने इफेक्ट वहां पर बढ़ जाएंगे. अगर मैं यहाँ पर ओनली 3 इफेक्ट करना चाहूँ तो अब देखिए यहाँ पे 3 इफेक्ट्स ही आ जाएंगे जब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा इसको. नाउ तो लिमिटेड इफेक्ट आएंगे, तो फर्स्ट देन 3 इफेक्ट्स. सो इस तरह हम एनिमेशन बना सकते हैं, तो वो इसके इफेक्ट क्रिएट कर देगा. हर बार इंक्रीज करेगा इफेक्ट्स को और एक एनिमेशन फॉर्म में चला जाएगा. सो नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अगेन. सो मैक्सिमम 25 वी कैन राइट डाउन. सो नाउ either we can change different type of घोस्ट अगर हम करना चाहें और इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो ये घोस्ट की फॉर्म में भी नजर आ जाएगा. आइदर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से. ओके, सो अदरवाइज सम डिफरेंट पोर्शन इज ओवर हियर. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या करना है कि बहुत सारी चीजें करनी है. तो इस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हो. ठीक है, एनिमेशन बन गया आपका. अब आइदर आप लोग क्या कर सकते हो, सपोज एनिमेशन आपको ड्रॉ करना होगा. कॉस्ट्यूम पे जाइए और यहाँ पर कॉस्ट्यूम है और आप कॉस्ट्यूम बना भी सकते हैं. सपोज आई एम जस्ट चूजिंग अ सिंपल बैकग्राउंड, सो वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ. सपोज इसका एक का मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो या इधर यहाँ से चूज अ कॉस्ट्यूम, मैं कॉस्ट्यूम ले सकता हूँ जो कॉस्ट्यूम मुझे लेनी है. सपोज आई जस्ट पुट इट टोबी अगेन. सो यहाँ पर एक टोबी की कॉस्ट्यूम आ गई. ओके, तो अब ये टोबी की कॉस्ट्यूम है. यहाँ से मैं कलर ब्रश हटा देता हूँ वापस. ओके, सो नाउ पॉइंटर, आई टेक द पॉइंटर. ओके, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी ब्लॉक्स थे, फर्स्ट कॉस्ट्यूम था ये, और यहाँ पर जो मैंने इसका कोड लिखा था यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ.
ये जो कोड मैंने लिखा था। ओके, इस कोड को मैं कॉपी मार लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं चला जाता हूँ कॉस्ट्यूम में वापस। जो थर्ड कॉस्ट्यूम, सॉरी, यहाँ पर जो थर्ड कॉस्ट्यूम मैंने लिए वो लिए मैंने टॉबी की, तो बीच में यहाँ पर एक टॉबी आ जाएगा। देखिए ये टॉबी, सो सडनली डिसअपियरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि चेंज होता है। यस, तो यू कैन सी दैट automatically suddenly it will be changing. So this is the animation design in Scratch. Now again I just adding something else in backdrop. I'm adding again backdrop. You can see that, suppose I'm adding a little bit background just like that. Okay, that one. Okay, so एक बैकग्राउंड मैंने यहाँ ऐड किया, और इस टॉपिक की साइज को मैं कर देता हूँ कम, कितना 50 कर देता हूँ। ओके, सो आइदर 100 कर देता हूँ, क्योंकि 150 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक की जो साइज मैंने 100 की है, तो इसमें क्या होगा कि अब इसके थ्रू हम, तो अब टॉपिक पे मुझे लिखना है, आईजेक है, तो आइदर मैं क्या करूं यहाँ पे, या तो मैं एक नया टॉपिक लूं, क्योंकि मुझे या तो इसी से बना हुआ तो कोड इसी में लिखना पड़ेगा मुझे। तो अब मुझे जब नया कोड बनाना है तो मैं एक नई वैल्यू लूंगा, किसके थ्रू, सपोज आई एम जस्ट पिकिंग ओवर ये एरो। ओके, सो ये एरो होगी। अब एरो पे मैं क्या करूंगा, कुछ लिखूंगा। सपोज मुझे कुछ शेप बनानी है, तो सबसे पहले इवेंट ब्लॉक पे जाऊंगा, यहाँ पर व्हेन क्लिक। ओके, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक रिपीट ब्लॉक लगाऊंगा मैं। यस, रिपीट, जितनी मुझे एंगल्स बनाने हैं, सपोज मुझे बनाना है 3 ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल के लिए यहाँ देन मोशंस पे जाके मैं मूव स्टेप्स कर दूंगा। कितनी स्टेप्स चलेगी, कि कम से कम 80 स्टेप तो मैं चलाऊं, ताकि मुझे उसका पता लग सके। उसके बाद टर्न 15 डिग्री और 90 डिग्री। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसका 120 डिग्री। ओके, सो नाउ अब देखिए आप, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जितने बार मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ, कुछ बना नहीं। तो इसके लिए मुझे ये जो एक्सटेंशन ऐड करना होगा, और यहाँ पर पेन टूल पे जाना पड़ेगा। ओके, जैसे ही मैं पेन टूल पे जाऊंगा, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। नहीं हुआ। ओके, अगेन आई जस्ट पेन टूल, दैट इज अ पेन टूल एंड एड एक्सटेंशन। Okay, where is the pen tool? Not coming here. So first aid. Okay, now pen tool. Aid extension. Okay, pen tool aid नहीं हो रहा है. Why? एक मिनट. Okay, blocks. So just why pen tool is not coming? Okay, just draw a sprite and just okay. So pen tool is not coming here. Okay, so no issue. हम इसको ऐड करेंगे, अभी ये शो नहीं कर रहा। जैसे कि म्यूजिक है, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक टूल्स तो आ गया। अब अगर आपको इसको प्ले करवाना है, तो सपोज कि ये जैसे ही कॉस्ट्यूम चले, यहाँ पर प्ले करेगा आपके साथ जो आपका टॉपी है। ओके, और हर बार इसका एक कॉस्ट्यूम में हम चेंज करेंगे साउंड। ओके, देखिए साउंड चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम हैंड क्लैप का कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं क्रश सिंबल, और यहाँ चेंज कर देते हैं हम क्लोज हाई हैट, एंड लास्ट वन वी आर चेंजिंग ट्राइंगल। सो अब देखिए ये चलेगा, तो अब आप देखिए, तो इसमें आपको वॉइस जो होगा साउंड वो सुनाई में आएगा, साथ का साथ जो भी साउंड होगा आपके उसमें रिकॉर्डिंग, तो दैट विल कम हियर। So now I'm just adding a extension again. Try to add a pen tool. Not adding over here. So first off this one, and again I'm trying to pen tool. Not coming yet. So not no issue. I'm just adding starting a scratch. No issue. That is the scratch. Where is the scratch? Scratch. I think I'll show again. One is Scratch programming also, TikTok blocks along with Scratch. So we are creating some new things, just like shapes and design of shapes we are creating. Suppose this is a cat. So now just on this symbol and use first just event block and add
when click and then control block use repeat until it's moving over. So number of time moving is 3 times. सपोज मुझे एंगल बनाना है तो 3 टाइम्स में मूव कराऊंगा. सो मोशन ब्लॉक एंड गो टू मूव स्टेप. Number of steps, suppose I am just writing 80 steps, it will remove. Okay, let me just, okay. Then turn degree of type, suppose I am just putting 120 degree. Okay, okay, 120 degree. Okay, so now you can see that it will 120 node. लेकिन ये add नहीं होगा. क्यों? जब तक मैं पेन टूल यहाँ पर add नहीं करूंगा. So this is the pen tool. और ये ऐड हो गया. तो यहां पर मुझे क्या करना है, पेन डाउन. सबसे पहले क्या, व्हेन क्लिक के अंदर यहां पर पेन डाउन. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा. देखिए इसने एंगल बना दिया. फर्स्ट टाइम एंगल बन गया. अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं और यहां पर जो है नेक्स्ट में क्या करना चाहता हूं कि पेन डाउन से स्क्वायर बनाना चाहता हूं. तो फर्स्ट 80 ब्लॉक्स में दे रहा हूं तो यहाँ डिग्री में चेंज कर दूंगा. इसको मैंने 90 कर दिया. और 90 करने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, पेन अप यानी कि उस स्टॉप भी करूंगा उस चीज को. आप देखिए एग्जीक्यूट करते ही ये एक स्क्वायर बन जाएगा. लेकिन स्क्वायर पूरा क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पर मुझे रिपीट लूप 4 करना पड़ेगा. तो 4 टाइम्स ही चलेगा तो यहां पर अभी स्क्वायर डिजाइन कर देगा. देखिए स्क्वायर डिजाइन हो गया. तो इस तरह हम शेप बना सकते हैं. सपोज आपको 5 एंगल बनाने हैं तो 5, तो यहां पर आपको 5 करना पड़ेगा. 6 का बनाना है तो 6 मैंने 5 किया. डिग्री तो उसके अकॉर्डिंग 60 के अकॉर्डिंग डिग्री डिवाइड करनी पड़ेगी. 72. देन पेन अप एंड पेन डाउन. नाउ लेट मी स्टार्ट. तो आप देखिए यहाँ पर ये एक शेप बन गई है. अब मैं इस टॉपिक को वापस यहाँ से इसको फ्लिप कर देता हूँ. 1 मिनट. इसका डायरेक्शन जो है ओके 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 यस यस दैट वन. ओके नाउ अब इसका डायरेक्शन सही हो गया. तो अब मुझे सर्किल बनाना है सपोज. तो सर्किल के लिए कितना डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री यहाँ पर रिपीट होना चाहिए. रिपीट लूप में 360 डिग्री ये चलेगा. ठीक है. उसके बाद 80 होगा और 80 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा. देन यू कैन सी दैट इट्स ड्रॉ अ सर्किल. सो वी कैन ड्रॉ अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. यस दैट इज डन. तो दिस इज शेप वी कैन डिजाइन. नाउ हम एक बैकड्रॉप लेते हैं वापस से. बैकड्रॉप लेते हैं हम. सपोज कीजिए स्क्वायर बॉक्स होता है यहाँ पे. नाउ ब्लू स्काई या फिर हम ब्लू स्काई लेते हैं. बैकड्रॉप ब्लू स्काई आ गया. अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक और स्प्राइट चूज करते हैं लाइक दैट रोबोट. अगर यहाँ पर रोबोट जैसा कोई स्प्राइट है तो हम वो ले लेते हैं. वेयर इज द रोबोट. Robot, 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 robot. Guitar, hair, head, love, heart, feeling. Okay. Knife. This is the robot. Okay, not is the robot. So we are taking a different type of robot. Okay, that is the retro robot. Okay, and dropship and this replay. This is robot. Okay, so we are taking this robot. Okay, अब ये robot मैंने ले लिया यहाँ पे. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, इसमें एक काम करना है कि सबसे पहले मुझे इसको तैयार करना है. तो कोड लिखना है. तो व्हेन क्लिक मैं हमेशा लिखूंगा. व्हेन क्लिक के बाद मुझे क्या करना है, इरेज ऑल यानी कि मेरा जो पेन टूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं उसको यूज करूंगा. इरेज ऑल यहाँ पर एक है और इसको मैं यानी कि जो भी है पुराना वो सबको इरेज कर देगा पहले. सबसे पहले उसके बाद गो टू एक्स. तो मोशन में आप देखिए गो टू है आपका एक्स एंड वाई. इसको यहाँ पुट करेंगे और गो टू की जो पोजीशन होगी हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. 50 या -50. सो अपने हिसाब से सपोज 45 एंड यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ दैट वन उस तरह से. और इसकी साइज में कर देता हूँ कितना कम, पहले में कर देता हूँ 50. इसकी साइज कर देता हूँ ताकि ये साइज कम हो जाएगी तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी. अब इसका जो डायरेक्शन है मैं इसको जितना मूव करूंगा उस तरफ से जाएगा. ठीक है. ओके नाउ 50-50. सो मैं इसका 45-38 इसका मैं डायरेक्शन कर देता हूँ. तो एक माइनस चलेगा एक प्लस चलेगा. सो -45 इसको करना पड़ेगा हमको. ओके. इसके बाद मुझे क्या करना है, सेट पेन साइज करना है. तो पेन पे जाऊंगा और इसकी जो पेन की साइज है कहाँ है, सेट पेन साइज ले लिया मैंने. कितनी करनी है सेट साइज ये डिपेंड करता है आप पे कि आप सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5 पेन साइज मैंने की 5.
देन इसके बाद मैं पेन डाउन लाऊंगा वापस, क्योंकि मुझे ड्राइंग करनी है तो मुझे पेन डाउन जरूरी है, बिना पेन डाउन के मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। ओके, पेन उसके पहले अब बीच में मुझे कलर भी लेना है, तो यहाँ पर पेन साइज के ऊपर मैं कलर लेता हूँ। कलर जो होगा मेरा वो डिपेंड करता है कि मैं कलर कौन सा चूज करूँ, सेचुरेशन लूप, ब्राइट या ट्रांसपेरेंट। मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं रिपीट लूप लगाऊंगा, कंट्रोल में जाके रिपीट लूप लगाऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो रिपीट कितनी बार करना है मुझको? 6 टाइम करना है, सपोज मुझे 5 टाइम करना है, सॉरी 5 टाइम मैंने रिपीट किया। अब 5 टाइम में जब रिपीट कर रहा हूं तो मूव स्टेप्स कितनी चलेगा, तो मूव कमांड में यहाँ पे आ जाऊंगा और इसमें बोलूंगा कि स्टेप्स कितनी लिखूं। सपोज आई एम जस्ट राइटिंग 150 150 स्टेप में मूव करना चाहता हूँ। और टर्न कितना हो, टर्न किस तरफ से हो, लेफ्ट से राइट से, तो आई एम जस्ट इसकी मैं यहाँ से टर्न कराना चाहता हूँ राइट साइड से। ओके, तो इस साइड से कितना कराना था इसको टर्न, तो टर्न में कराऊंगा 72 डिग्री। अगर मैं 5 स्टेप दूंगा तो 72 डिग्री मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं वेट लगाऊंगा, कंट्रोल पे जाके वेट जो है मेरा, ये वेट, यहाँ पर मैंने वेट लिखा, वेट कितना करूंगा 0.5 सेकंड का वेट मैंने कर लिया। देन अगेन स्टाम्प लगाऊंगा, मैं पेन उस पे जाऊंगा और यहाँ पे एक स्टाम्प टूल होता है, ये स्टाम्प यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और उसके बाद चेंज पेन कलर, तो यहाँ पर चेंज पेन साइज है और चेंज पेन कलर ये है, तो पेन का कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर दूं मैं, 30 कर देता हूँ। ओके, ओके, देन इसके बाद मैं कर दूंगा पेन अप, यानी कि ड्राइंग बंद कर दूंगा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्स्ट इरेज, यू कैन सी दैट रोबोट हियर एंड मूविंग ओवर हियर, तो यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स शेप्स विल बी देयर, यू कैन सी दैट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले, और जो हमारा मेन है ये वाला, तो हम इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, ये तो कॉपी है, यानी इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, और ये टॉबी को मैं यहाँ रख देता हूँ, केट को यहाँ रख देता हूँ। अब ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने वापस से एग्जीक्यूट किया, तो फर्स्ट क्या करेगा, इरेज ऑल, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर इसने एक डिजाइन बनाई है। तो ये कोऑर्डिनेट है 50। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को, यानी कि ये वाला, ये कोऑर्डिनेट 153 है, 153। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80 टू -80। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा उस पोजीशन पे, तो वो इतना लार्ज हो जाएगा कि उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, जो मेरे को सेट करनी है स्क्रीन से। तो मुझे क्या, पहले इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी जो मेरा ओरिजिनल टॉपिक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज कर दूंगा और 1 मिनट इसकी पोजीशन वापस से मैं कर देता हूँ 50 टू -50। ओके, नाउ अगेन आई एम जस्ट एग्जीक्यूट। ओके, सो अब देखिए यहाँ से तो भी मेरा एक एक्स्ट्रा चला गया, क्योंकि वो बहुत दूर मैंने उसको रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन से वो सारे कोड मेरा रन हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रोबोट आर्म काम कर रहा है। अब अगर मैं इसकी साइज और कम करना चाहूँ, अब यहाँ पर मैंने जो साइज कलर पेन चेंज दिया है, पेन को मैं 10 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा इंक्रीज लो हो जाएगा। ओके, ओके, और ज्यादा हो गया। अब मैं इसकी साइज कर देता हूँ 50, सॉरी लेट मी जस्ट क्लियर 50। तो यहाँ पे देखिए जितना साइज मैं करता जाऊंगा ये बढ़ती जाएगी, और साइज तो मुझे इसकी बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, अगर मैं 30 कर देता हूँ, चेंज पेन बाय 30, सिंपल जो साइज है इसका बाय डिफॉल्ट। ओके, नाउ तो हर बार ये लूप में इसकी साइज को स्टाम्प करता जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो चेंज साइज 5 से हो गया, तो यहाँ भी मैं 10 कर देता हूँ, 5 से 10 ज्यादा नहीं, और इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट व्हेन एंड क्लिक, तो ये हर बार इंक्रीज करेगा साइज, क्यों कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस। कलर, अगर मैं यहाँ पे कलर भी 10 कर देता हूँ, जस्ट ओके, तो कलर भी चेंज होगा, देखिए आप हर बार उसकी साइज बढ़ रही है। मूव 150 स्टेप, रिपीट 5 टाइम, 10 इतना स्टाम्प। ओके, सो कलर पोजीशन अगर मैं यहाँ पे सेचुरेशन कर देता हूँ तो उसके हिसाब से वहां पे सेचुरेशन चलेगा, ठीक है। और पेन साइज अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कलर की जो साइज है, हमारी डायरेक्शन जो है यहाँ पे, अगर हम इस पे जाए, हमारा रोबो भी ये है, और पहले इसका डायरेक्शन सही कर लेते हैं। ओके, okay, yes, that one. Okay, now change the shape position 90 and 60. So 60 minus
60 हम इसका रख देते हैं और एक बार फिर से इसको ट्राई मारते हैं। तो आप देखिए हर बार वो जो डिस्प्ले है वो वाइड हो गया। तो इसकी जितनी ज्यादा विड्थ हम करेंगे 80 हम कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसकी विड्थ पर कितनी करनी है। यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब कलर 30 किया और कलर मैंने कर दिया यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में। ओके, नाउ अगेन तो यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट कलर होगा और आपको पूरी शेप नजर आती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा उसका। तो हम अपनी पोजीशन सेट करेंगे वापस से, जो हमारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन थी उसी पे रखेंगे। एक्स इज -50 तो -50। ठीक है, चेंज पेन साइज सपोज मैंने 10 वापस इस पे 5 कर दी और सेट पेन ट्रांसपेरेंसी मैंने 10 कर दी और यहाँ पर मैंने 30 कर दिया। ठीक है, ओके, ये 30। तो आप देखिएगा ये मूविंग करेगा तो इस तरह की शेप यहाँ पर बनती जाएगी। अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाएगा, लेकिन 5 एंगल ही चलेगा। तो हम कितने ही तरह की शेप्स यहाँ से बना सकते हैं वाया दिस कोड। और जो इसकी साइज है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेन साइज, तो सेट पेन साइज, तो सेट पेन ट्रांसपेरेंसी, सेट पेन साइज 5, so by default I am putting 1. Okay, now see that. Okay, तो that is the different type of। अब इसकी जो कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट है वो हमको यहाँ पर बिठाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं, 6 करते हैं, पेन अप करते हैं, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी शेप्स है जो हम बना भी सकते हैं। सिंपल सिंपल लार्ज भी बना सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।